Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 11, Organizational Structure of Housekeeping Department of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are Introduction, Organizational Structure, Public Area Supervisor, Floor Supervisor, Uniform/Linen Room Supervisor, Night Supervisor, Room Attendant, Uniform linen room attendant, tailor, upholsterer, head gardener, houseman and gardener. So first of all, we will start with the introduction of this particular topic, that's organizational structure of housekeeping department. The success and credibility of the hotels depend solely on their in-house professionally skilled team. तो आप समझ सकते हैं कि एक होटल की या किसी भी होटल की सक्सेस या क्रेडिबिलिटी टोटली डिपेंड करती है उनके इन हाउस प्रोफेशनली स्किल्ड टीम पर, कि टीम किस तरीके की है, उनकी कितने प्रोफेशनल लोग हैं, कितने स्किल्ड टीम है, उस पर डिपेंड करती है सक्सेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द होटल. टॉप क्वालिटी सर्विस विद डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, इंटेलिजेंट, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड मोटिवेटेड स्टाफ. तो स्टाफ में कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे कि टॉप क्वालिटी सर्विसेज या डेडिकेटेड, ट्रेन होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, सिंसियर, ऑनेस्ट, मोटिवेटेड स्टाफ. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ होटल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. होटल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर स्टाफ में ये क्वालिटीज़ रहती हैं, दे आर प्रोफेशनली क्वाइट स्किल्ड टीम, तो सक्सेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल द होटल्स टोटली डिपेंड ऑन दैट. This team succeeds in building and maintaining the image and reputation of the hotel and creating and sustaining regular and privileged guest visits. तो इस तरीके की टीम पर टोटली डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिल्ड करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द होटल एंड क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग रेगुलर गेस्ट विजिट्स. तो किस तरीके से गेस्ट विजिट्स को वो क्रिएट करते हैं और किस तरीके से सस्टेन करते हैं अपनी प्रिविलेज गेस्ट विजिट्स को. टोटली इट डिपेंड्स ऑन दैट टीम, द टीम ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. जो इस चीज़ पे अगर उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं एंड दे पोजेस दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज़, तो ये टीम ऑटोमेटिकली सक्सीड कर जाएगी इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द होटल. So these few things are very important for the like professionally skilled team is very much important for the success and credibility of the hotels. For providing excellent and satisfying quality service, lot of effort has housekeeping staffs continuously. Additionally, trained staff must be retained, ensuring the consistency and staff dedication remains focused through various methods of training and motivation. तो इस तरीके के स्टाफ डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी अगर बनी रहे तो वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन की हेल्प से ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट रिजल्ट और सेटिस्फाइंग क्वालिटी सर्विसेज मिल पाएंगी होटल को. लार्जेस्ट वर्कफोर्स ऑफ द होटल इज इन द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. आप जानते हैं कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो सबसे लार्जेस्ट वर्कफोर्स रहता है उनका. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर इस डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से मेंटेन किया जाए तो इट कैन प्रोवाइड द एक्सीलेंट एंड सैटिस्फाइंग क्वालिटी सर्विसेज. So there are a lot of efforts are required for the housekeeping staff continuously so that they can provide these kind of results. Additionally, the trained staff जो है उनके पास consistency होनी चाहिए, staff dedication होना चाहिए so that they remain focused through various methods of training and motivation. So it would be appropriate at this stage to understand the hierarchy, duties and responsibilities of all the housekeeping staffs for effective communication and coordination. तो अब यहाँ पर हमें ये सीखना होगा कि actually different duties और responsibilities, पूरा hierarchical structure क्या रहता है इस housekeeping staff का for effective communication and coordination, जिससे कि वो effective communication बना पाएंगे और coordination बना पाएंगे. तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है, hierarchical structure क्या रहता है, roles responsibilities क्या रहती हैं इनकी. तो this is the most important thing to know here. So we'll start with this organizational structure of housekeeping department.
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो इट मेनली डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज एंड द साइज ऑफ द होटल. ऑटोमेटिकली साइज पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया हुआ है और कितने लेवल्स रहेंगे, कितना हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहेगा. टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड एक्टिविटीज ऑफ द होटल. So I can tell you the different categories, or I can show you the different organization of structure of the large and medium sized hotels. Now we are just learning about the different responsibilities of various supervisors. So in the small hotels, one or more jobs are integrated and handled by few housekeeping personnel. So this aspect generates the few responsibility of various supervisors. The parties are, so first starts here, the first in the list is executive housekeeper. जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट लिस्ट में आ रहा है वो है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर. रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द टोटल क्लैनलीनेस. ये टोटल क्लैनलीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं. मेंटेनेंस एंड एस्थेटिक अपकीप ऑफ द होटल, और मेंटेनेंस के लिए, एस्थेटिक अपकीप के लिए कि किस तरीके से क्लेanलीनेस मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटेशन कैसे मेंटेन करना है, टोटल अपकीप कैसा रहेगा. सो ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अंडर द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर. दिस इज अचीव विद द रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर, मटीरियल, मशीन्स, मनी, स्पेस एंड टाइम अवेलेबल टू हिम. ऑटोमेटिकली ये सब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. ऑब्वियसली दैट्स मैन पावर की ज़रूरत रहेगी, मटेरियल की ज़रूरत रहेगी, सामान की ज़रूरत रहेगी, मशीन्स की ज़रूरत होगी, मनी, स्पेस एंड टाइम. सो इफ दीज आर अवेलेबल टू हिम, ही कैन गो ऑन फॉर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही कैन complete his responsibilities quite well, and that would be, and he is responsible for this whole upkeep and aesthetic upkeep of the hotel and total cleanliness. And next is assistant housekeeper in the list. He manages the resources given by the executive housekeeper to achieve the common objectives of cleanliness, maintenance and attractiveness in a given shift. इसका क्या रोल रहेगा हम ये देखेंगे. अब एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की तरह ये भी मैनेज करता है रिसोर्सेज गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस एंड अट्रैक्टिवनेस इन अ गिवन शिफ्ट. जो भी इन्हें शिफ्ट दी जाएगी उसमें ये एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो भी इन्हें मैनेज करने के लिए कहेंगे रिसोर्सेज को, उन्हीं की तरह ये भी कॉमन ऑब्जेक्टिव जो क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस और अट्रैक्टिवनेस था, उस चीज़ पर इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. हिज अकाउंटेबिलिटी नॉर्मली एंड्स ऑन द कम्प्लीशन ऑफ हिज शिफ्ट, और इनकी अकाउंटेबिलिटी तब एंड हो जाती है जब इनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जब अवेलेबल नहीं है तब उस शिफ्ट में ये उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का काम था, दैट्स क्लीनलीनेस एंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं आप टोटल अपकीप ऑफ द होटल इन द एब्सेंस ऑफ यू कैन से एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर. तो हिज अकाउंटेबिलिटी नॉर्मली एंड्स ऑन द completion of his shift. तो जैसे इनकी शिफ्ट खत्म होती है तो इट्स टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं. तो ही इज असिस्टेंट हाउसकीपर. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर. यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर जो है नॉन मैनेजमेंट पर्सन सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन सर्विसेबल यूनिफॉर्म्स टू द स्टाफ. जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये क्लीन सर्विसेबल यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करें स्टाफ को. तो इनका ये काम रहेगा, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी इनकी. एज अ होटल स्टाफ आर ऑल प्रैक्टिकली इन यूनिफॉर्म्स एंड हिज हर टास्क इज इनॉर्मस एंड डिमांडिंग. आप समझ सकते हैं कि इनका टास्क कितना इनॉर्मस, कितना डिमांडिंग हो जाएगा, एज ही शी हैज टू कीप एन inventory control on various stages of use, such as when sorted ones are handed over or those which are being washed or dry cleaned in the laundry. तो इनका काम थोड़ा सा ज़्यादा इनॉर्मस है, थोड़ा डिमांडिंग है, क्योंकि डिफरेंट यूनिफॉर्म्स चाहिए. कौन सा इनको ध्यान रखना होता है कि कौन सी सॉर्टेड आउट है, कौन सी वॉश के लिए गई हैं, कौन सी ड्राई क्लीनिंग के लिए जानी है. तो वी कैन से यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर इज टोटली अकाउंटेबल फॉर द यूनिफॉर्म्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द होटल. Next in the list is uniform room attendants. Uniform supervisor is assisted by attendants who actually do the issue of uniforms in exchange for soiled ones for onward transmission to the laundry. These attendants are in actual contact with the staff. तो इस तरीके के attendants जो हैं वो ये काम करते हैं कि किस तरीके से
यूनिफॉर्म्स को जो है ऑनवर्ड ट्रांसमिशन किया जाएगा, जो सॉइल्ड वंस हैं उनको कहाँ पे आगे लॉन्ड्री में ट्रांसमिट किया जाएगा या ऑनवर्ड उनका ट्रांसमिशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास रहती है। एंड द यूनिफॉर्म सुपरवाइजर को असिस्ट करते हैं ये यूनिफॉर्म रूम अटेंडेंट्स और उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से ये लॉन्ड्री तक जो भी सॉइल्ड लिनन है या जो भी यूनिफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से वहां तक जाएंगी। दीज अटेंडेंट्स आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द स्टाफ। नेक्स्ट in the list is linen room supervisor, non-management person solely responsible for the acquisition, storage, issue and cleanliness of linen in its various form। तो आपको समझ आ रहा है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, लिनन रूम सुपरवाइजर ये नॉन मैनेजमेंट पर्सन है जिसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि किस तरीके से स्टोरेज करना है, इश्यूज, क्लेanलीनेस ऑफ लिनन और वेरियस फॉर्म्स को लेकर ये सब काम करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी किस तरीके से लिनन से जो भी उनका स्टोरेज करना है, क्लोथ्स का, यूनिफॉर्म्स का, लिनन का, ये उनसे रिलेटेड एनी ऑफ द इश्यूज इज विद लिनन रूम सुपरवाइजर। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द लिनन रूम सुपरवाइजर्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लिनन रूम अटेंडेंट। ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि अटेंडेंट जो है वो सुपरवाइजर को असिस्ट करेंगे। Assist the supervisor by actually issuing linen and filing such records as necessary। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनन रूम सुपरवाइजर स्टोरेज, इशू, क्लीनलीनेस ऑफ लिनन का ध्यान रखेंगे। सो अटेंडेंट जो है वो उनको असिस्ट करेंगे सुपरवाइजर को और फाइलिंग वगैरह में उनकी और इशू करने में लिनन को जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो ही विल हेल्प हिम आउट एंड असिस्ट हिम इन द वेरियस टास्क। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज टेलर एंड सीमस्ट्रेस। टेलर और सीमस्ट्रेस की बात करते हुए हम ये बता सकते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिचिंग एंड मेंडिंग द लिनन एंड अपहोल्स्ट्री। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द नेम एज इट टेल्स यू। टेलर जो है वो स्टिचिंग और मेंडिंग पर्पस का काम करेंगे एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिचिंग एंड मेंडिंग द लिनन एंड अपहोल्स्ट्री। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हेल्पर्स। हेल्पर्स जैसा कि नाम से इसमें भी आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि ये हेल्पिंग का काम करते रहेंगे। दे आर टू बी फाउंड बोथ इन यूनिफॉर्म्स एंड लिनन रूम्स एंड डू द फिजिकल वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, काउंटिंग एंड बंडलिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड लिनन्स। तो आप जान सकते हैं कि इस तरीके का काम इनका रहेगा हेल्पर्स का और हेल्पिंग का काम ये करते रहेंगे और ये यूनिफॉर्म और लिनन रूम्स दोनों में ही मिल जाएंगे और इनको दोनों में ही हमें रखना पड़ेगा ताकि फिजिकल वर्क का जो काम रहता है, ट्रांसपोर्टिंग का और काउंटिंग, बंडलिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स और लिनन, उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्पर्स के पास आ जाती है बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फिजिकल वर्क की जहाँ पे उन्हें जो भी सामान इधर से उधर ले जाना है, काउंट करना है, बंडलिंग करनी है। तो ऑल दीज टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन बाय हेल्पर्स। नेक्स्ट इज फ्लो सुपरवाइजर। फ्लो सुपरवाइजर की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेanलीनेस मेंटेनेंस अटैच्ड टू हिम इन अ शिफ्ट। His scope encompasses guest rooms, corridors, staircases and floor pantries of the allotted floor। तो फ्लोर सुपरवाइजर जो हैं वो पर्टिकुलर फ्लोर का ध्यान रखेंगे एंड सुपरवाइज करेंगे उनको एंड वो एक पर्टिकुलर फ्लोर जिनकी भी उनको सुपरवाइजिंग का काम दिया है, सुपरविजन का काम दिया है, वहाँ की क्लीनलीनेस मेंटेनेंस जो उनसे अटैच्ड है इन दिस शिफ्ट उस पर ध्यान रखेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहेगी और उनका स्कोप ये रहेगा कि उन्होंने उसी फ्लोर के सारे गेस्ट रूम्स, कॉरिडोर्स, स्टेयरकेसेस और फ्लोर पैंट्रीज जो भी उनका अलॉटेड फ्लोर है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सो हिज utmost responsibility is to take care of all the guest rooms, corridors और staircases and floor pantries जो भी उनके अलॉटेड फ्लोर पे क्या है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पब्लिक एयर सुपरवाइजर। पब्लिक एयर सुपरवाइजर जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द क्लेanलीनेस एंड मेंटेनेंस एंड प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ ऑल पब्लिक एरियाज। तो पब्लिक एरिया की सुपरवाइजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर सुपरविजन के लिए इनके पास पब्लिक एरिया है जैसे कि रेस्टोरेंट है, बार है, बैंक्वेट हॉल है, गार्डन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, शॉपिंग आर्केड, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, मेन एंट्रेंसेस एंड कार पार्क एरियाज। तो ये सब जैसे कि होटल के आसपास के जो भी पब्लिक एरियाज रहेंगे जहाँ पे स्विमिंग पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, शॉपिंग आर्केड और मेन एंट्रेंसेस, कार पार्क एरिया, ये सब चीज़ें जो है पब्लिक एरिया सुपरवाइजर के अंडर आ जाती हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनकी क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस और प्रेजेंटेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन की जाएगी इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पब्लिक एरिया सुपरवाइजर के पास। नेक्स्ट इज रूम अटेंडेंट।
ऑल्सो नोन एज चेम्बरमेड्स और रूम बॉयज। इन्हें हम चेम्बरमेड्स या रूम बॉयज भी बोलते हैं, क्योंकि इनका काम आप देख सकते हैं कि दे डू द एक्चुअल क्लीनिंग ऑफ गेस्ट रूम्स एंड बाथरूम्स अलॉटेड टू देम। तो ये एक्चुअल क्लीनिंग करते हैं। बाकी तो अब तक ये जो हमने सुपरवाइजर्स या अटेंडेंट पढ़े, तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस तरीके से क्लीननेस मेंटेन रखते हैं, बट काम जो करेंगे वो रूम अटेंडेंट्स करेंगे। तो इनको हम चेम्बरमेड्स या रूम बॉयज बोल सकते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली डू द एक्चुअल क्लीनिंग of guest rooms and bathrooms allotted to them. They are not responsible for the cleanliness of corridors, guest elevators or floor pantries. तो इन सब चीज़ों का काम इनके अंडर नहीं आता है. They are not responsible for the corridors and guest elevators and floor pantries. Next in the list is head houseman. Houseman is a mammoth task because he keeps track of all linen as they would number in thousands. तो ये सारे लिनन का ट्रैक बनाते हैं, फाइलिंग वगैरह उनकी करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि thousands के लिस्ट में आते हैं लिनन ट्रैक्स, उनका रखने के लिए एक जो हाउसमैन का ये काम रहता है, ही हैज़ अ मेमो टास्क, बिकॉज इनका ट्रैक इनको रखना होता है सारे लिनन का, क्योंकि वो thousands में होते हैं. तो ही ऑल्सो सुपरवाइजेज द वर्क अलॉटेड टू हाउसमैन. और ये उनका हाउसमैन का जो भी, स्पेशली दोज इन पब्लिक एरियाज में जो भी हाउसमैन होते हैं उनको सुपरवाइज भी करते हैं ये. इन मीडियम साइज होटल ही कुड बी द पर्सन इन चार्ज ऑफ हाउस कीपिंग ऑन नाइट शिफ्ट ऑल्सो. तो जो मीडियम साइज होटल्स होते हैं उसमें हेड हाउसमैन रात के टाइम पे नाइट शिफ्ट में इंचार्ज ही बिकम्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ हाउस कीपिंग. So it usually happens in medium sized hotels where a head houseman has this responsibility also. Otherwise he usually keep track of all the linen as they are quite big in number, so he keeps tracks of all those linen. Next is houseman. Usually handyman who do the heavy physical cleaning required in guest rooms and public areas. तो ये public areas और guest rooms में जो भी तरीके की cleaning, फिजिकल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, वो ये सब टास्क परफॉर्म करते हैं. देयर जॉब वुड इंक्लूड वैक्यूमिंग, शिफ्टिंग ऑफ फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ विंडो पेन्स, मॉपिंग, ब्रेजिंग, स्वीपिंग एक्सेट्रा. तो हाउसमैन का काम रहेगा कि ये सब चीज़ें ये करेंगे, वैक्यूमिंग एंड ऑल, फिजिकल क्लीनिंग जो भी गेस्ट रूम्स और पब्लिक एरियाज में रहेंगे, क्योंकि जो रूम्स का काम है रूम बॉयज करेंगे, रूम अटेंडेंट्स करेंगे, द गेस्ट रूम्स और जो भी बाथरूम्स अलॉटेड हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स पब्लिक एरियाज या गेस्ट रूम्स हो गए उनको हाउसमैन जो है क्लीनिंग करेंगे. दे हैव टू डू हैवी फिजिकल क्लीनिंग वर्क. और विंडो पेन्स हो गए, मॉपिंग, ब्रेजिंग, स्वीपिंग, इन सब चीज़ों का काम ये हाउसमैन के अंडर आ जाता है. नेक्स्ट इज डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर. दिस इज लास्ट विद नॉट द लीस्ट इन द लिस्ट, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन. Desk control supervisor is a hub of information dissemination in housekeeping and is thus the critical person in housekeeping operations. It must be manned 24 hours as guest visits for information. तो डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर जो हैं ये हब रहते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. ये सब तरीके की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से हाउसकीपिंग से जो देनी है, ही इज़ अ हब ऑफ ऑल दोज इंफॉर्मेशन पार्ट. तो ये बहुत ही क्रिटिकल पर्सन रहते हैं हाउस कीपिंग ऑपरेशंस में. जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे दिस इज़ द लास्ट पार्ट, लेकिन ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इन द होल हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्हीं के एंड से जो भी इंफॉर्मेशन है वो जनरेट हो जाएगी, डिसेमिनेट होगी इन द होल हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट. सो वी कैन से ही इज़ द क्रिटिकल पर्सन इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एंड ही इज़ अ क्रिटिकल पर्सन इन द हाउस कीपिंग ऑपरेशंस. Housekeeping desk must be manned 24 hours. Housekeeping man must be maintained of 24 hours as guests and staff will contact this desk to transmit or receive information. क्योंकि housekeeping desk जो है उनको 24 hours आप जानते हैं मैन करना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट स्टाफ को कभी भी आप ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करनी होगी इन्फॉर्मेशन. तो वी नीड दीज सुपरवाइजर्स 24 आवर्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी. इट इज़ अ डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर हु कोऑर्डिनेट्स विद द फ्रंट ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन और डिपार्चर. और इस चीज़ का काम भी इनके अंडर आ जाता है कि ये फ्रंट ऑफिस
जो भी उनको इन्फॉर्मेशन डायसेमिनेट करनी है, डिपार्चर रूम्स को, मतलब हर तरीके की इन्फॉर्मेशन डायसेमिनेशन का काम डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर के अंडर आता है, क्योंकि इनके पास डेस्क कंट्रोल है, यानी कि हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो भी कोऑर्डिनेट करना है विद गेस्ट, स्टाफ एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, और फ्रंट ऑफिस इन्फॉर्मेशन या डिपार्चर रूम्स एंड हैंडिंग ओवर क्लियर रूम, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग का काम डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर का रहता है. डेस्क ऑल्सो रिसीव्स कंप्लेंट्स और मेंटेनेंस फ्रॉम हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स स्प्रेड ऑल ओवर द होटल. तो इन सब चीज़ों का भी ये काम करते हैं. Now in the part 2 of this session, so we'll discuss about the public area supervisors, uniform linen supervisor, night supervisor, room attendant, and the different responsibilities of all these departments in the part 2 of this session. So thanks for now. Thanks a lot.